और अभी बहुत सारे लोग हैं, मेहमान हैं जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं और काफ़ी देर से मैं इनको देख रही थी कि ये होली के रंग में कुछ ज़्यादा ही रंगे नज़र आ रहे थे और आज इनसे जुड़ेंगे, इनसे जानेंगे कि इनको यहाँ पर किस तरीके की जो है एन्जॉयमेंट फील हुई है। बहुत सारे लोगों ने डांस किया, अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, क्लासिक एरा चल रहा था। तो सबसे पहले हम आपसे जानेंगे यहाँ पर आके किस तरीके का माहौल और किस तरह की खुशी मिली एक तरीके से, क्योंकि इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है। कोरोना के बाद ये होली का इतना बड़ा त्यौहार मनाया जा रहा है, सभी लोग बहुत खुश हैं। होली का त्यौहार मनाया जाता है, एक दूसरे को बधाई दी जाती है। हम अपने भी अच्छे उसकी कामना करते हैं, अपने मित्रों की भी कामना करते हैं। उसी प्रकार से इस बार भी होली का त्यौहार ऐसे मनाने की इच्छा है। थैंक यू सो मच सर। महिलाएं भी हैं और वो भी रंगीन जो है मिजाज में अपने आप को खोती हुई नजर आ रही थी। पुराने क्लासिक एरा के गाने चले थे। मैम आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले? मेरा नाम विनीता बख्शी है। ओके, कैसा लगा आपको यहाँ पर? इतना खुशनुमा माहौल था, होली के गीत चल रहे थे, कुछ पुराने गीत कुछ पुराने एरा में लेके गए, कैसा लगा यहाँ पर आकर? मैं लास्ट ईयर भी काइट के प्रोग्राम में आई थी एंड जो प्रवीण जी जो ये होली की शाम ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अपने हम सब कितने भी मसरूफ थे, काम दाम छोड़ के हमने कहा कि जाना चाहिए, तो हम लोग आ गए। थैंक यू सो मच मैम। तो इनके हिसाब से तो जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए विदेशों से भी लोग आते हैं इंडिया के कल्चर को समझने के लिए, इंडिया की सभ्यता को समझने के लिए। एक्सक्यूज मी, वी जस्ट वांट अ बाइट फ्रॉम यू। यू आर फ्रॉम ग्रीस, राइट? Yes, the ambassador of Greece. Okay. Yes. So, sir, how you are enjoying here? Because you are from Greece and you are seeing lot of colors and lot of things. Yes. And so, what's your opinion about this? About Indian culture and Indian culture, way of Holi life. festival. Yes. The people, how they enjoy Holi and all the now- music. Now it's my first time that I will experience the Holi festival, but I think that it will be grateful because everything is very grateful, very vivid. So basically, you are India. from I another like country. it. So is the question of mine is how much you enjoy this country? I enjoy it very, very much because Greece and India, they have some affinities, some similarities in their culture, in the way they approach life, and they love the festivities in life. They like to live very vividly, and this is a common feature between the two people. Tell me the best thing which you had got here, ki you have listened or you have gone through ki this thing is very perfect in India and it should be like matlab never be we will find in another way in any other country also. Okay, what is excellent in India is that I travel around India and I found I'm finding different places, let's say different cultures, different languages, even different religions. And although it's a country, at the same time is a whole continent, India. Okay, it's a continent that encompasses a lot of culture, of people, of ways of life, and this is the most interesting. So basically, it's your first time in India. So I just want to ask this thing: ki how you you have seen, you have talked with many Indian peoples. How you think ki Indian peoples are sweet, decent, calm, or something like? Is it your something bad experience about our country people? No, I have no bad experience at all. And as I said when I presented my credentials to the President of India, the people of Greece, they have a very, very fond feelings for the people of India because they are aware of their struggles for independence and for their toil for a better life. And I see this in the face of every Indian person that I meet during my stay in India. Okay, thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. सो बेसिकली ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी जो लोग आते हैं यहाँ पर, वो यहाँ के रंगीन मिजाज और जो संगीत है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा रुझान रखते हैं। और शायद यही एक वजह है कि ग्रीस से जो एक राजदूत आए हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को फील किया है, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और यहाँ की जो फिज़ाओं में जो एक हवा में एक महक है, खुशबू है, एक रंग है, उसे जो है देखा है। आगे और लोगों से जुड़ेंगे और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि होली का माहौल है तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर कलरफुल दिख रहे हैं, क्लोथ्स भी कलरफुल पहने हैं और उनके विचार भी इस समय कलरफुल है और काफ़ी लाइट एटमॉस्फेयर हो चुका है। क्योंकि आज का जो रिपोर्टिंग है बेसिकली वो एक इस तरीके की रिपोर्टिंग है जिसमें कोई न्यूज़ नहीं है, जिसमें कोई
ऐसी हार्डकोर ब्रेकिंग नहीं है, लेकिन आज का जो माहौल है वो ज़्यादा त्योहार में है, जो खुशनुमा है उसे हम आप तक ऐसे ही पहुंचाएंगे। कैसा लग रहा है यहाँ का जो माहौल है इतना ज़्यादा, मतलब त्योहार का जिस समय से म्यूज़िक भी देख रहे थे, काफ़ी आप एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, कितना खुश और कितना अपने आप को स्ट्रेस आउट करा आपने यहाँ पर? डेफिनेटली, एक तो सबसे पहले आप जानते हैं कि होली महोत्सव जो है स्नेह का प्रतीक है। बिल्कुल। और आज हमने दिल्ली के सभी प्रमुख व्यापारिक संगठनों को सबको आमंत्रित किया, सब आए और मैं समझता हूँ हर प्रमुख व्यापारिक संगठन यहाँ मौजूद था। और यहाँ पे क्या उसने अपने संगीत ने एक अलग से एक माहौल बना दिया और उसके बाद उस माहौल ने सबको थिरकने को मजबूर कर दिया जी। तो ये सबसे बड़ी बात है। मौसम ने भी साथ दिया। उसके बाद आज अगर हम उन बोलें तो आज हमने खास ऐसी पुरानी दिल्ली की चार्ट के वो बनाया, वो जो लोग कह रहे हैं वाह क्या बात। अरे वाह। तो कुल मिला के हाँ। हमारा आज का जो ये कार्यक्रम था वो एक इसलिए कि आओ और एक दूसरे को चंदन लगा के गले मिलके अपनी एकता प्यार मोहब्बत को और आगे बढ़ाएं। सबसे पहले तो होली का ये जश्न है, माहौल है, रंगीन है, शाम है और म्यूजिक भी था अभी कुछ देर पहले तक। कैसा लगा यहाँ आकर? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं यही कहूँगा आपको सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। और आई थिंक 1 मार्च से जैसे होली फेस्टिवल हम सब के लिए एक शुरुआत हुई है एंड केट ने एक बहुत बड़ा एक पहला कदम लिए जो कि एक होली मिलन के लिए उन्हें बढ़ाया एंड वी आर ऑल ब्लेस्ड टू बी हियर। कितने टाइम से आ रहे हैं आप यहाँ? आई एम विद केट फॉर अबाउट 3 years, 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 3-4 साल से ज़्यादा। तो इन 3 साल में बीच में कोविड भी आया था? कोविड भी आया और कोविड में इन्होंने जितने भी इवेंट्स किए, वेदर फॉर द ट्रेडर्स या हमारे गवर्नमेंट से इंटरेक्शंस थी या कुछ भी था, वी वर ऑल देयर, पार्टिसिपेटेड। इतने फीडबैक्स मिले जो कि हमने अपने एसोसिएशन में सर्कुलेट किए, फिर उनके फीडबैक वो हमने इनको दिए। सो इट इज़, आई थिंक दे आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द ट्रेड एंड देयर मेंबर्स। आपको नहीं लगता कॉमर्शियल सिलेंडर्स के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए, 360 रुपए? तो ये चाट पकौड़े और ये समोसे, इनके दाम भी कहीं ना कहीं ठेले वाले एडजस्ट करेंगे, रेडी पटरी वाले? उन्होंने जो कुछ एडजस्ट करना था बहुत कुछ वो एडजस्ट कर चुके हुए हैं। और ये एक दीज आर जस्ट नोशनल। 350 रुपये में एक समोसे पे शायद 5 पैसे का फर्क पड़ता होगा, तो इट इज डजंट गोइंग टू बॉदर देम। बट हमारे को ये देखना कि 350 रुपये उन्होंने कमर्शियल के लिए बढ़ाए, पर उन्होंने आम आदमी के लिए सिर्फ 50 रुपये बढ़ाए। दे डोंट वांट टू हिट द कॉमन पर्सन। तो आई थिंक वी शुड ऑल अप्रिशिएट दीज एफर्ट्स कि 50 रुपये के लिए हम बहुत हा हुल्ला करें, ये नहीं करें गवर्नमेंट का फिर मेरी हालत देखो। वी शुड अंडरस्टैंड एंड हैव फेथ। जो हमने चुन के गवर्नमेंट को भेजा हुआ है, हमें उनको मजबूत करना है, हमें अपने शोर मचा के उनको कमज़ोर नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से ये भव्य आयोजन होली की थाप पर किया गया था, जहां बहुत सारे लोगों से हम जुड़े और सभी व्यापारियों ने इसको मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। कई सालों से इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। गेट टुगेदर जो है, एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करने के पीछे वजह ये होती है कि लोग अपने सारे स्ट्रेस और दिन भर की जो दिनचर्या है उसको भूल कर साथ में गले मिले। और होली का त्यौहार तो रंगों का त्यौहार होता है, तो यहाँ पर एक रंगों की अनूठी छटा देखने के साथ साथ म्यूजिक, एक पुराने क्लासिक एरा को भी जो है जीने का लोगों को मौका मिला। इसके साथ ही साथ लोग काफ़ी खुश और काफ़ी हतोत्साहित इस त्यौहार को लेकर नजर आए। कैमरामैन शान के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, इंडी टाइम्स।